everyone, myself Rajpira Kaur and you are watching News Moment English channel. Welcome to this channel. Have a look on this breaking news. The only shop in Asansol which is famous for its uniqueness. This shop is 100 years old. They have some unique products. They have the variety of khakra which you don't find in Asansol. They have delicious product. The address of opposite SBI Bank, Simran Roy Road, Asansol. The pin code is 713301 and you have also call on the number 0341 2305 and another mobile number is 9547356154 and they have the unique tasty products meethi khakra, masala khakra, sadda khakra, Manchurian khakra, cheese khakra, Maggi khakra, chaat masala khakra, mithia khakra, banana chips, banana stick, roasted peanuts, soya stick, andal. Inside the Parascol East Colliery B Peat mine in Kajoda area of ECL, behind the 25 label, 14 number Defreet Hall. In the rise, the first shift stocking worker Gopal Gop, 45, who was going to work in the stocking, was crushed by falling dead, while four other companions with him survived. When information of this incident was found in the colliery premises, there was a chance all the worker representative and colliery officers reached the spot and took stock of the situation. The labor organization investigated the incident, took action against the guilty officer of colliery were demanding and deceased dependent against by keeping the crops near Pete on the demand for job and compensation. In connection with the incident, fellow workers Santosh Dhobi, Nityand Jha, Ram Swarup Das and Dayamai Kundu told that in the first shift we were working as stockings in the number 25 labor. It would be around 45 past 10 along with Gopal Gop, and the Gopal Gop was working 10 to 15 feet ahead of us. We were working behind. There was a sudden loud sound near the script and Kanti fell down with a big move. Come Anand and Dr. Umesh Prasad, Sanjay Singh, KKSC, Sapan Chatterjee, Vijay Gradhi, HMS Area Safety Officer, went inside and picked up the body after investigating and the incident. After bringing the body up, the local worker kept the job with Chanak and there was an uproar over the demand for compensation. After that, the seal of the meeting between the worker organization and the management started. At the meeting, AITUC leader and former Rajya Sabha member R.C. Singh, KK Singh General Secretary Hare Ram Singh, Narendra Kumar Singh of BMS, Vinod Kumar Singh from CITU, Akhilesh Kumar Singh, District President of Youth Trinamool Congress Rupesh Yadav, Organization Secretary HMS Saib Alam and other members were present. Agent Satyakam Anand, APM Punyadeep Bhattacharya. On behalf of management, PM Sanjay Bahumanji attended the meeting. In the meeting, wife Aparna Gop was signed to join the banking Kanchoda area and within 7 days to pay compensation to Banki 90,000 rupees for chairman, of which 50,000 rupees will be given immediately after bank comes through postmortem. Now, Dayamam Kundu, brother of labor, trapped inside mine.
पॉइंट बात करो, पॉइंट। आप लोग बोल रहे हैं कि चलिए उधर एग्रीमेंट ठीक है, एक तरफ एग्रीमेंट होता है, एक दूसरा बात जो बाकी उसके साथ है हम लोगों ने किसी ने देखा नहीं, ठीक है, वो कैसा है, उसको क्या चोट लगा है उसका। दूसरा बात इसमें क्या होता है कि सदमा आ जाता है, मेरा सामने अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो मैं मेंटली डिप्रेस हो जाता हूँ, ठीक है, उसमें मेरे को बहुत कुछ हो सकता है, मेरा पल्स रेट घट सकता है, मेरा हार्ट बीट घट सकता है, ठीक है। Listen Hare Ram Singh what the union leader said. फर्स्ट शिफ्ट में स्टोइंग का काम चलता है। स्टोइंग मजदूर गोपाल गोप और उसके साथ और 3-4 आदमी थे, वो लोग काम कर रहे थे। अचानक 11 साढ़े 11 बजे चाल आ गया, ऊपर से कोयला का चाल आ गया, उसी में दबा गया। संजोग से 3 आदमी तो बच गए, इसका जो है फैटल एक्सीडेंट हो गया। चाल क्यों आ गया? कोई सेफ्टी का क्या देखा? सेफ्टी का अभाव तो है, मैनेजमेंट के निग्लिजेंसी के कारण ही कोई भी एक्सीडेंट खदान में होता है, उसके कारण ही होता है। और इसमें मैनेजमेंट का पूरा निग्लिजेंसी है। बार बार वर्कर ने कहा था कि भाई यहाँ जगह ठीक नहीं है, किसी दिन एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन उस पर मैनेजमेंट ध्यान नहीं दिया और उसके लेकर के इतना बड़ा हादसा हुआ। आप लोगों का क्या डिमांड ये है कि कंपनी का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अंतर्गत जो भी उसको मिलना है हम लोग दिलाएंगे। अभी तुरंत उसके परिवार को, अभी वो लोग डिसाइड नहीं किया है, उसकी एक लड़की है और वो अपने यहाँ वाइफ है, तो उसमें से जो नौकरी करना चाहे उसको आज से ही हम लोग ज्वाइनिंग का व्यवस्था। सेफ्टी के बारे में खदान जो है अभी बंद रहेगा, कल से इंस्पेक्शन होगा, पूरी सेफ्टी की व्यवस्था होगी, तभी हमारे वर्कर खदान में जाएंगे। सर मजदूर नहीं था कि सही बात है, वर्कर बार बार बोलता है, उसके बाद भी मैनेजमेंट सुनता नहीं तो गरम तो होगा ही। अभी मैनेजमेंट जो पीएम है हमारे भौमिक साहब पहुंचे हुए हैं, एजेंट डॉक्टर सभी आ रहे हैं, आकर के एक एग्रीमेंट होगा। The leader of the revolt gave some technical information. घटना से बताइए, क्या एग्रीमेंट हुआ सर? घटना तो हुआ है कि रूफ फॉल हुआ है, आदमी वहाँ पर पाइप फिट कर रहा था, स्टोरेज पाइप फिट कर रहा था और वहाँ सेफ्टी की व्यवस्था नहीं थी, रूफ लूज था और जब फॉल हुआ तो उसके अंदर वो दब गया और एक बहुत अच्छा वर्कर था, सिंसियर वर्कर था, उसकी मौत हो गई। सर चाल गिरा ना सर, काठी गिरा सर, समझ में क्या गिरा था? वो साइड लेकर के ही गिरा है, चाल और साइड दोनों गिरा है, एक साइड से ही था तो दोनों गिरा हुआ है, लूज था वहाँ पर और उसको ख्याल नहीं किया। वहाँ जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो लगाने के पहले उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए था और इंश्योर करना चाहिए था कि यहाँ आदमी जाने से किसी तरह का खतरा नहीं है, तब भेजा जाता है। सेफ्टी जांच नहीं किए थे लोग, इसलिए सेफ्टी जांच नहीं हुआ और जो स्टोइंग का इंचार्ज था वो भी जांच नहीं किया, जो कोई माइनिंग का आदमी रहा होगा, और जो मैनेजर हैं सेफ्टी की जिनकी जिम्मेवारी है वो भी जांच नहीं किए, जिसके चलते दुर्घटना घटी और एक सिंसियर वर्कर का मौत हो गया। आप प्रोसेस के लिए सर कोई जांच का मांग कर रहे हैं? हाँ, जांच तो हर एक्सीडेंट में जांच होता है, इसमें भी विशेष तौर से हम लोग जांच चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग कह रहे थे यहाँ स्टोइंग नहीं हो रहा है, स्टोइंग में चोरी हो रहा है, बालू भराई नहीं होता था, टॉप बॉटम खाली रहता था और जिसका नतीजा ये बार बार भुगतने को हो रहा है, बार बार हो रहा है, यहाँ पर घटना हो रहा है। इसलिए इंक्वायरी होगी, माइनिंग डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगा और एक ट्राइपार्टाइट इंक्वायरी होगा, यूनियन रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा, माइनिंग डिपार्टमेंट रहेगा, इंक्वायरी होगा और जो लीगल एक्शन होगा वो तो जरूर लिया जाएगा, वो किया जाएगा। उसकी एक्सीडेंट हुआ, उसकी औरत को नौकरी मिलेगी, उसका जो लीगल ड्यूज है वो मिल जाएगा और वो बेचारी अपना संसार चलाएगी। इसलिए सारी असुविधाओं के बावजूद आज यही पूरे दिन भर से घटना यही रहा, हुआ है तो
इस तरह से बहुत सी जगह पर होगा ईसीएल, क्योंकि ईसीएल में सेफ्टी बोल करके कोई चीज़ नहीं रह गया है। और ईसीएल में दो तरह का काम हो रहा है, एक इलीगल माइनिंग और अंडरग्राउंड में भी जो काम चल रहा है वो इलीगली चल रहा है, जिसका परिणाम है कि एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं और एक्सीडेंट बढ़ेगा। अब इसको रोकने के लिए यूनियन, मैनेजमेंट, माइंस डिपार्टमेंट और जितने साथी हैं सबको लेकर के सतर्क होकर के आगे व्यवस्था कर रहे हैं। संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई है। सरकार तो बेचने के पक्ष में पड़ी हुई, सरकार एक करके बेच रही है, लोग नहीं समझ रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे हाईएस्ट वोट बोनस लेने वाले 68,500 रुपया और सबसे अच्छा वेतन पाने वाले, इस तरह के हिंदुस्तान में और कोई दूसरा उद्योग नहीं है जो कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग जो है वो इस तरह का अपना रोजगार कर सके। उसको भारत सरकार बेचने पर उतारू हो गई है और अगर संगठन कमज़ोर रहा, लड़ाई कमज़ोर हुई तो कोयला खदान फिर से दोबारा प्राइवेट हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई होगी। From Vikas Prasad, senior reporter of News Movement Sankodia, 27 October, delivered in the conference room of ECL headquarters on Tuesday, ahead of the 46th Foundation Day of Coal India for Better Performance and Execution of Cleanliness Awareness Campaign 2019. Under Sonipur Bazaar stood first in health under the award, while Kansodia area 2 and Kajoda area 3 stood, whereas 8 workers who did better work were also rewarded with the creation and momentum. Kodia's 27 October on Tuesday, Vigilance Awareness Week ECL CMD Prem Sagar Mishra administered on the oath to all the directors, departmental heads, etc. to work for the sustainable development of the country and society with the integrity and honesty. Along with this, the vigilance message of other including the president of country were read out. Barabani block Charanpur is the number 3 public Durga Puja, which is the almost 100 years old. Like every other year, the function was inaugurated by Pooja Mandi, a member of West Bardhaman District Council. Banbhumi Pujo organization were also present. আজকে চরণপুর 3 নম্বর গ্রামের দুর্গাপূজা প্রায় 100 বছর পার করেছে। এই মন্দিরটি নতুনভাবে প্রতিস্থাপন করতে পেরেছি এবং এখানে আমি এসেছি, অসংখ্য খুশি লাগছে। ওপেনিং থেকে আজকে নরনারায়ণ সেবা খিচুড়ি বিতরণ হচ্ছে, প্রায় আমাদের 3-4 হাজার লোক খিচুড়ি খাবে এই সেবা। এবং কালকে আগামীকাল দ্বাদশী দিনে আমরা প্রতিমা বিসর্জন করব। একটা মা চলে যাচ্ছে, খারাপ লাগছে, কিন্তু আস্তে আস্তে আবার হবে। এবং তার অনুকূলে আমরা এই মন্দির নির্মাণ করতে পেরেছি এবং আমরা এই পুজোটাকে Durga Puja pandals and illumination of different places in Barabani block were captured on our camera on Vijayadashmi day.
Today a meeting was organized with member of board administrators where following decisions were taken. Brow Vice Facilitation of Durga Puja Committee who were best in following health protocols of COVID on 6 November 2020. Cleaning of all water bodies used for ideal immersion within 29/10/2020. Special mass sanitizer and cleanliness drive from 1/11/2020 to 7/11/2020 means 1 November 2020 to 7 November 2020. 10 blood donation camp in all borough area will be conducted from 8/11/2020 to 30/11/2020. 8 November 2020 to 30th November 2020. Recently, in many parts of India, rape and murder incidents have happened. Administrator has re-entered in many places, did not do in many places. It was tried to hide it in many places. Uncle's hand was seen now in the West Bengal, did not hold back. Here are some similar situations. Kanpur, the Gurdwara Prabandhak Committee was strongly commended it and culprit was demanded to punish. Even student union has strongly advocated for coming forward. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारी सिख संगत की तरफ से मैं अपने भारत के लोगों के साथ में अपने सिख समाज की तरफ से कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ कि आज हमारे भारतवर्ष का जो हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ में और हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनके साथ में जो अपराधी इस टाइम जो अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि हमारी जो महिलाएं या छोटी बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नजर नहीं आ रही है भारतवर्ष में। कुछ दिन पहले ही अभी हमारे उत्तर प्रदेश की धरती हाथरस में वाल्मीकि समाज की हमारी एक लड़की के साथ में जो घटना वहां अपराधियों ने की थी वो बहुत ही निंदनीय और उसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम थी। अभी हमने उसे नहीं भूला था कि थोड़े ही दिन पहले फिर पश्चिम बंगाल में बरनपुर में हमारे ही गुरुद्वारा स्कूल की छात्रा अल्तमा फातिमा के साथ में जो 9वीं क्लास की नाबालिग बच्ची के साथ में कुछ अपराधियों ने फिर जो घटना को अंजाम दिया है उसकी भी हम काफ़ी निंदा करते हैं अपने सिख समाज की तरफ से। उस बच्ची के साथ में भी जो कर्म करके उसकी हत्या करके बीसी कॉलेज के तालाब में उसकी जो शव है उसे फेंक दिया। उसे पुलिस ने उसके शव को बरामद करके पुलिस ने उसके परिवार को नहीं पहचान कराने के बजाय उसका तुरंत पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसके बाद पुलिस ने उसके परिवार को देके और तुरंत पुलिस के निर्देश पे उसका जो पार्थिव शरीर था उसको दफन करवा दिया गया। हमें नहीं मालूम कि हमारी पुलिस की क्या मजबूरियां हैं। आज एक और बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हमारे पवित्र पंजाब की धरती होशियारपुर जिले में 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म करके उसके शरीर को अपराधियों ने जला दिया है उसकी हम अपने सिख समाज की तरफ से बहुत हमारे अंदर में आक्रोश और गुस्सा भी हमारे अंदर में है और हम कहीं ना कहीं इस घटना पे काफ़ी हमारा सिख समाज शर्मिंदा है। क्यों कि ये जो घटना पंजाब होशियारपुर में घटी है वो एक ही परिवार के 2 सदस्य हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बहुत शर्म की बात है कि वो एक अपराधी जो तकरीबन बताया जा रहा है कि 80 साल का है। आज हम पूरे सिख समाज की तरफ से पंजाब के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर माननीय अमरिंदर सिंह जी को हम अपील कर रहे हैं कि वो जो अपराधी है उनको तुरंत से तुरंत या तो उनके शरीर को जला दिया जाए नहीं तो फांसी में झुला दिया जाए। क्यों ऐसे अपराधियों को धरती पर रहने का कोई भी हक नहीं है।
लेकिन आज मैं किसी टीवी चैनल के मार्फत से सुन रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने तुरंत अपनी प्रशासन को निर्देश दिया है कि इस केस को देख के तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के जो अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसे तुरंत से तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, उसे कहीं भी किसी भी जगह पर बख्शा ना जाए। लेकिन हम फिर भी अपने सिख समाज की तरफ से अपील करेंगे कि उन अपराधियों को या तो जलाया जाए नहीं तो फांसी पे झुलाया जाए। जो भी अपराधी इस तरह की घटना कर रहे हैं, या तो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश या हमारे पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना करने वाले अपराधी कहीं पर भी हो, वो बचने नहीं चाहिए। हमारी बरनपुर में भी जो एक घटना घटी थी, पूरा बरनपुर को झकझोर के रख दिया है। इसमें एक दुख की बात यह है कि आज हमारे जो स्कूल कॉलेजेस के जो हमारे स्टूडेंट यूनियन के जो लोग हैं वो सारे चुप्पी साधे हुए हैं। आज हम अपनी गुरुद्वारा बनपुर की तरफ से अपील करेंगे कि जो हमारे स्कूल की बच्ची अल्तमा फातिमा के साथ में जो घटना को अंजाम अपराधियों ने दिया है कि हमारी इस टाइम पवित्र दुर्गा पूजा हम मना रहे हैं, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद में जो हमारे स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं, गुरुद्वारा स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो सामने आए और उस परिवार को इस जो केस पे जो इतनी जघन्य अपराध उस फातिमा के साथ में, अल्तमा फातिमा के साथ में किया गया है, उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। ये हम हर भारतीयों का, खास करके हमारे बनपुर शहरियों का और हमारे सारे सिख समाज का, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हमारा जो स्कूल मैनेजमेंट है, ये सब मिलके उस बच्ची को और उसके परिवार को हम न्याय दिलाएं। हम इतनी की अपील कर रहे हैं अपने भारतवर्ष के लोगों से और हमारे माननीय पुलिस प्रशासन से, खास करके ये अपील हमारी जरूर सुन के इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।